is the architecture of transformer? Clear? So please first आपका APP like हेलो transformer encoder and decoder we learn in 2 days. One today and tomorrow also, both day. नहीं नमाज अभी नहीं पढ़ी है। Clear? Say अभी तो यही what are generative हाँ transformer? A branch of AI that 5 focus से on 6 तो ठीक creating है, तो हमें लगा new आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे, context तो आप उस समय तो rather पढ़ा रहे थे। than just analyzing or interpreting data. Clear? कमरे Mainly में focus transformer क्या करता है? To create a new content. आ रहे हैं हाँ Use like machine learning models like transformer to generate text, image, audio, video, code, anything like chat GPT. Here use transformer. If you given any type of prompt, अच्छा अच्छा ठीक clear, है you ओके। get output. Yes. Generative transformer are deep learning model built on the transformer architecture. They are designed to generate sequence such as text, like only RNN, LSTM. These are the model those who work on sequential data or to generate output in sequence such as code, such as text, such as audio, such as video. Clear? Suppose आपने एक टेक्स्ट दिया या फिर आपने कोई प्रॉम्प्ट दिया, अगर वो आपको आउटपुट एक सीक्वेंस के फॉर्म में नहीं मिलेगा तो आपका आउटपुट क्या है? वेस्ट है, लाइक मीनिंगलेस. Clear? But when you use transformer architecture, ले जाओ यही you वाला ले always get a output in sequence. Why generative transformer? Because long range dependency. Yes, because RNN disadvantage. What is RNN disadvantage? Anyone tell me? बोलो यार, सब एक साथ आ गए। Sir, time consuming. क्या हुआ? और next उनको जाना है। एक तो Sir, short term memory sir, short term Sir, memory. complex architecture. जैसे ही Sir, different difficult होता है Long sir, term long memory term problem. dependency के लिए sir. उसके बाद उसी Long term memory problem. yes सर इसकी long ट्रेनिंग सर इसमें होती सर है। और फिर इसमें सर वैनिशिंग और एक्सप्लोरिंग ग्रेडियंट में का सर इशू आता है। It's a slow training. okay and it does not work on large data set. Clear? Like long range dependency, Yes, sir. they refer to the relationship between element in a sequence that are a part of that are for part of your output. Common in natural language, whether the meaning of word can be defined on another word many steps before. Yes, जो आपका लास्ट लाइक जो लास्ट लाइन का एक सेंटेंस होगा वो पहले के जो उसके जो वर्ड होंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है. क्लियर? Versatile generating task, they refer to the wide range of output that generate. AI model can produce multiple of modality like text, image, code through some Gemini, GAN models, diffusion models. Clear? Chat GPT, these are the models those who work on versatile data set or given wide range of output through generative AI. Generative model are not limited to one type. स्वास्थ्य करे. Yes. Screen visible or not class? So visible. Sir, visible है sir. स्वास्थ्य करे. सर हो सकता है उस पर नेटवर्क इशू होगा। नेल कटर की जरूरत थी तो अब 20 का 40 से 60 का नेल कटर था, 20 वाला ले लिया हमने। वहाँ देखा थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं है, टेम्परेरी तो चाहिए था तो ले लिया। आके घर पे नेल कटर तोड़ दिया और हम कह रहे हैं ये क्या क्या कैसे करती है वो। हम तो कह रहे हैं कि ज्यादा नौटंकी ना करो, अभी हम चले जाएंगे। उनको ले जाओ आगे, यहाँ हमने कहा जाइए अकेले जाके घुमा जाएंगे, तो कह रही है नहीं हमको रास्ता नहीं पता, खो जाएंगे। लखनऊ अकेले जाने कह रही है और हम ये कह रहे हैं कल से जो है हम पास में, मम्मी कह रही है अकेले चले जाना और आ जाना रिक्शा करके, तो कल से हम अकेले जाए आएंगे। फोन स्विच ऑफ कर देंगे 2 से 5, पढ़ना करना। Clear? Generative models are not limited to one type of output. I think everyone use chat GPT. Yes class? Yes, sir. Yes sir. Like जितने टाइम आप रिफ्रेश करेंगे उतने टाइप्स का आपको आउटपुट मिलेगा.
Clear? That's why generative models, सर एक generative AI बात models. पूछना है सर Yes. सर चैट जीपीटी सर कभी हम लोग के आंसर का नो क्यों नहीं करते हैं सर मतलब कि हमेशा बता ही देता है सर ऐसा क्यों सर क्योंकि उस डेटा सेट के ऊपर उसको ट्रेंड किया गया है साजिद अली। यस सर क्लियर? लाइक ये जैसे सपोज अभी यस जेमिनाई है ना, लाइक जेमिनाई आप कोई सी भी टाइप की इमेज दे दीजिए वो उस टाइप की इमेज में कन्वर्ट कर देता है। बट चैट जीपीटी को अभी आप किसी भी टाइप की इमेज लाइक दीजिए एज इनपुट, आप बोलिए कि सर लाइक चैट जीपीटी कन्वर्ट दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट, उसको वही फॉर्मेट कन्वर्ट करने में लाइक टाइम लगता है। यस और सर वो तो आप बता रहे थे सर क्योंकि उसको ट्रांसफार्मर नहीं यूज करता अभी भी इनकोडर डिकोडर थोड़ा सिस्टम ये है तो क्लियर? बट यस अभी आफ्टर सम टाइम बाद देखना आपका चैट जीपीटी वर्क करने लगेगा, लाइक जो इसके डिसएडवांटेज रहेंगे वो उसके सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी हमेशा लाइक जो भी लाइक मैनी गर्ल्स और बॉयज, क्लियर, सभी ने मैनी यूज जेमिनाई टू गिव अ image as a input and generate different style, different change the background, change the like hairstyle like and face everything through Gemini। तो आपका मॉडल वो इस इमेजों से ट्रेंड हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रेंड हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रेन हो रहा क्लियर? है। आप क्लियर। सपोज परप्लेक्सिटी, लाइक परप्लेक्सिटी इज द बेस्ट एआई टूल तुम्हें सोना नहीं है टू क्या? नीचे यूज चलो। लिटरेचर एंड रिव्यू। आओ चलो। लिटरेचर रिव्यू के लिए सबसे बेस्ट एआई टूल है आपका क्यों? परप्लेक्सिटी। क्यों? बिकॉज क्योंकि जो सभी आईआईटियंस हैं, क्या है, आईआईटियंस पीएचडी स्कॉलर्स, उनके लिए परप्लेक्सिटी फ्री देता है। लाइक उसको उन लोगों को एक्सेस आईआईटी की मेल में फ्री मिलता है। सोच तो हो वो गई जो यार, वहाँ अब पे जो क्या प्रॉम्प्ट डालते हैं, लाइक जो आईआईटियंस का जो डेटा डलता है यार उस पर काहे चला रहे हो? सोना है। परप्लेक्सिटी क्या हो रहा है? ट्रेंड हो रहा है काम मॉडल। घंटा करो, तो नीचे भी जो कुछ वाईफाई चलो। मिस्टेक्स अभी करेगा, लाइक नीचे फ्यूचर में करो, वो इसलिए कह मिस्टेक्स रहे कभी नहीं थे। करेगा क्योंकि वो वहाँ पे चलो, कहाँ का पहन ले। जो आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं उनका एज इनपुट जा रहा है, और 90 to 95% एज इनपुट वो हमेशा सही होगा। क्लियर? तो वो सर मॉडल तो सर तो कोई मल्टीपल, मॉडल ऐसे यस, चलो। सर तो कोई मॉडल ऐसा बन जाए सर जो सारा काम वही कर पाए दूसरे मॉडल का जरूरत ही ना पड़े ऐसा क्यों नहीं हो रहा है सर इट इज इम्पॉसिबल। सर वाई सर यस से लाइक कभी आपने किसी को परफेक्ट देखा है? नो नो सर नो सर देन स्वास्थ्य करें। सर बट उसको ट्रेन तो यस सर। करवा सकते हैं ना सर अलग अलग डेटा सेट पे करवाते रहेंगे सर कभी ना यस, कभी तो अचीव हो ही साजिद अली का जाएगा सर आंसर दीजिए। सर मैं दो आंसर। ये यस मनबीर, फर्स्ट आप दीजिए। सर आप सर साजिद अली ये बता कि डाटा एआई को ट्रेन करने के लिए कहाँ से आ रहा है? ह्यूमन से आ रहा नो है नो और नो, ह्यूमन खुद एक साजिद अली नॉन परफेक्ट क्वेश्चन सोर्स है इज, सर, उसका डाटा लिसन, कभी ना साजिद अली कभी का, एरर रहेगा सर। साजिद अली का क्वेश्चन ये है कि एक कोई ऐसा मॉडल कभी बन सकता है लाइक चैट जीपीटी ऑल दीस थिंग जो दूसरे एआई टूल की रिक्वायरमेंट ही ना पड़े? इट इज पॉसिबल? सर ये तो फिर वो होगा ना, बहुत ज्यादा कॉस्ट वो हो पहले जाएगी। पहले तो सर समझ आया ना क्या पूछना चाह रहे हैं साजिद अली। विदाउट कमांड के कैसे क्या कर पाएगा सर वो? स्वास्थ्य करें, लाइक यू आर द स्टूडेंट ऑफ 4th ईयर बीटेक, क्लियर? स्वास्थ्य, यस सर। यस, उसके क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सर एक रीजन तो ये रहेगा कि एआई मॉडल जो ट्रेन होते हैं वो डेटा पे रहते हैं, यस क्योंकि कभी कभार डेटा हमारा इनकम्प्लीट भी रहता है, इनएक्यूरेट भी रहता है, यस तो वो एंड भी एक चीज हो जाती है सर। दूसरा ओके, सर जो होता है वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं रहता है, मतलब प्रिडिक्शन करता है ना एआई मॉडल, तो मतलब जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है तो प्रिडिक्शन बेस्ड हमें देता है ना आंसर, इसलिए। बिकॉज एनी मशीन लर्निंग मॉडल लर्न फ्रॉम डेटा। ये सर ठीक है क्लियर सर स्वास्थ्य करें? डेटा से तो यस सर। लर्न करता है सर लेकिन हम लोग उसको सर वही डेटा दे दें जो उसको चाहिए सर तब इट तो इज कर सकते हैं ना इम्पॉसिबल। अब आपके इट मन इज में क्या विचार वो, आया क्योंकि है? भाई पैटर्न बेस्ड आंसर देता है ना। लिसन, सपोज आपके मन में क्या विचार आया है, अब उसको ये पता थोड़ी ना कि फ्यूचर में आप किस टाइप का सोच पाते हैं। यस इट सर वो डिपेंड्स तो ऑन यू। इम्पॉसिबल है सर यस सर तो मतलब एक लाइक मॉडल नहीं कर सम, पाएगा नहीं नेवर, लाइक सम, वो लाइक प्रिडिक्शन करता है ना, प्रेडिक्ट यस, करता है आंसर को डेटा के बेस पे। लाइक जो वो डेटा से सीखा होगा वही प्रिडिक्ट करेगा ना। लाइक बिफोर 1 or 2 years, like Gemini or ChatGPT, many disadvantage, clear? But nowadays यस it depends on your data set.
आपने किस डेटा सेट पे उसको मॉडल को ट्रेन किया हुआ है, आपका डेटा सेट उसको क्या सही था या गलत था। क्लियर? यस है यस। यस। सर यही यही तो मैं कह रहा था सर कि डाटा ही मतलब अनफिल्टर अनवेरिफाइड सोर्स से आ रहा है, तो वहां से एरर आ रहा है तो आगे भी एरर ही रहेगा। बट लाइक जो स्वास्थ्य खरे ने जिस टाइप से आंसर रखा है, आंसर इस टाइप से रखना पड़ता है। क्लियर? इसलिए मैंने स्वास्थ्य खरे को, वो 4th ईयर का स्टूडेंट है, इसलिए मैंने उसको बोला था कि आप आंसर दीजिए। क्लियर? जी सर। हाँ, कोई बात नहीं मनवीर। यस, क्लियर। जनरेटिव मॉडल्स आर नॉट लिमिटेड टू वन टाइप ऑफ आउटपुट लाइक चैट जीपीटी, जेमिनाई। लाइक आप जब भी रिफ्रेश करेंगे आपको आउटपुट हमेशा डिफरेंट ही मिलेगा। क्लियर? दे कैन हैंडल डाइवर्स क्रिएटिव एंड टेक्निकल टास्क। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट जनरेशन, कोड जनरेशन, इमेज जनरेशन, all these things, audio generation, video generation, everything through generative AI transformer we create. Then parallel training efficiency. What is the benefit of parallel training efficiency? A method of training deep learning model by dividing tasks across multiple procedures like GPU, TPU, and CPU. It efficiency depends on GPU also. Allow the model to train faster and handle large data set or model. Clear? Suppose your GPU system बहुत छोटा है और CPU सिस्टम, तो ट्रेनिंग टाइम पीरियड क्या हो जाएगा वहां पे, इंक्रीजेस हो जाएगा। क्लियर? कैन नॉट हैंडल लार्ज डेटा सेट। दैट्स व्हाई इफ यू क्रिएट एनी जनरेटिव AI मॉडल, मिनिमम कॉस्ट 2 crore to 3 crore. Like we want like high GPU system, high CPU, all these things. Foundation of what is the full form of SOTA? State of the art. State of the art. Clear? Foundation Yes, for SOTA AI refers to core technologies, architectures, method that enable that the development of state art AI system. These are building blocks for cutting edges like GPT-4, Cloud 3, Gemini, and Llama 3. These are the examples of state of the art. And these are the applications. Clear? First, suppose broad applications of generative AI. First, natural language processing, where you use transformer, vision, biology, audio, and coding. Clear? Suppose you given a one image in chat GPT. क्लियर? देन वहां पे आपको मल्टीपल ऑफ आउटपुट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मल्टीपल ऑफ आउटपुट लाइक विच विच कलर प्रेजेंट इन बैकग्राउंड, हाउ मेनी प्रोटीन, हाउ मेनी स्ट्रक्चर, हाउ मेनी प्रोटेक्शन। लाइक आपको जो इमेज का डिटेल रहेगा एज आउटपुट आपको सभी मिलेगा थ्रू जनरेटिव AI। बट आप बिफोर 2 or 5 years सपोज एक आप इमेज एज अ इनपुट इन गूगल को देते थे तो आपको वहां पे मल्टीपल ऑफ आंसर मिलते थे, बट वी डोंट नो विच वन इज करेक्ट, विच वन इज रॉन्ग। बट इन जनरेटिव AI व्हेन यू यूज चैट GPT, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, एनीथिंग, आपको वहां पे चांस 95% आउटपुट करेक्ट ही मिलेगा। लाइक NLP, व्हाई वी यूज NLP to text generation, summarization, translation, and core applications like powering of chatbots, content creation. These are the applications of NLP, natural language processing. We already learned in previous class all these things. Vision, from creating a photorealistic image with Dell to image synthesis to editing, they are transformed digital art of media. Biology, in computational biology models like AlphaFold, use transformer to predict complex protein structure and accelerating drug discovery. Here also we use generative AI. What about audio? Yes, ऑडियो क्रिएट करने में आपको जनरेटिव ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। जनरेटिव ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड फॉर म्यूजिक कंपोजिशन, वॉइस सिंथेसिस, साउंड इफेक्ट, operating avenue in creative audio. Yes, we also use in coding field also.
like tools like GitHub, clear, Jupyter Notebook, all these things. These models for code completion, generate and bugging fixing, enhancing developer productivity. And this is the architecture of transformer. Please draw this architecture, everyone, right now. First, draw this. Draw this architecture, everyone, now. Within 5 minutes. Please, fast class.
Yeah, done class? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Let's sir. start first. Encoder. See, write down this also. This is the encoder and this is decoder. Clear? In right hand, decoder, left hand, encoder. Clear class? Yes, sir. Yes. Tell me why we लेफ्ट वाला इनकोडर है डिकोडर लेफ्ट वाला लाइक दिस ये वाला विधि जो इस टाइप का है ये एनकोडर है आपका यहाँ पे जो कर्सर दिखा रहा हूँ वही जो आपका राइट वाला है जो लार्ज है ये आपका डिकोडर है सर तो ब्लॉक्स वाला एरिया होगा ना हमारा या पूरा एरिया ही होगा पूरा लाइक टिल एयर दिस इज द Okay. एनकोडर ओके सर and this is decoder. Clear? Write down here key and value. This is key and this is value. Write down here key and value. Then key and value. Done, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Let's first start encoder. Clear? Why we use embeddings? Anyone any idea? Please don't use ChatGPT. सर क्या सर Clear? फिर से क्वेश्चन करना सर Why we use here embedding? सर इनपुट ले रहे हैं सर इसीलिए ना इनकोड करने के लिए Swastik? सब वर्ड सेंटेंसेस इमेज को कन्वर्ट करने के लिए नंबर्स में Like which type of numbers? जो सर डेटा में होंगे ना जैसे वर्ड्स होंगे सेंटेंसेस होंगे उस टाइप को कन्वर्ट करना नंबर्स की फॉर्म में क्योंकि मशीन बिट फॉर्म पढ़ता है ना 0 1 की फॉर्म में Listen here and write down here one more thing. Tokenization. What? Tokenization. टीएफ आईडीएफ यहाँ पे प्लीज सभी लोग लिख लीजिए राइट डाउन टोकनाइजेशन यहाँ पे भी एंड इधर पे भी दोनों जगह पे टोकनाइजेशन ओके एवरीवन रिटन हियर टोकनाइजेशन यस सर ओके सर तो ये क्या करता है सर इनपुट एम्बेडिंग सर वेट आई थिंक एवरीवन नो व्हाट इज टोकनाइजेशन यस सर लक्ष्य सोनी सेंटेंस को सर छोटे यस छोटे वेट लक्ष्य सोनी अखिलेश पटेल नदीम नहीं सॉरी अनु पांडे he is also not saying anything रुमिसा सिद्दीकी रुमिसा अनय त्रिपाठी Yes, sir. यस सर टेल मी टोकनाइजेशन सर यस टोकनाइजेशन प्रोसेस होता है सर वो टेक्स्ट को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में करता है वर्ड्स हो गया कैरेक्टर्स हो गया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकनाइजेशन सर 3 टाइप्स होते हैं वर्ड्स हो गए कैरेक्टर्स हो गए सब वर्ड्स हो गए
Okay, these are the types of tokenization. Clear? ये किसने पढ़ाया है आपको ये कि इतने टाइप्स के टोकनाइजेशन होते हैं? यस अनय. Okay, Romisha, no problem. Anay, Yes, sir. there are 4 types of tokenization. Clear? 4 Check your types. graph. Yes, I have already shared tokenization PDF. How many types of tokenization? Yes, sir. Okay. Vidhi, Yes, sir. why we apply here positional encoding? सर आइडिया नहीं है इसका, बट इनकोडिंग के बारे में पता है सर। इनकोडिंग के बारे में पता है कि कोई भी डेटा अगर हम भेजेंगे तो वो उसको एक तरीके से हेल्प कर देगा इनकोड करने में, Like जैसे which मशीन type के of? लिए हेल्पफुल हो जाए। सर सॉरी Yes, which type? मतलब suppose first we given. सर, अगर हम लोग टोकनाइजेशन लगा रहे हैं तो हमारे जितने टाइप के टोकन यूज होते हैं, अगर सपोज वैल्यू हो रहा है या करेक्टर हो रहा है या फिर नंबर हो रहा है, तो टोकनाइजेशन लगा देंगे। फिर एम्बेडिंग का रोल मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट हाँ, अगर हम उसमें इनकोडिंग लगा रहे हैं, इनकोडिंग का कॉन्सेप्ट, तो वो हमारी मशीन में अलग-अलग तरीके से डिफरेंशिएट करके इनकोड कर देगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर लैंग्वेज में कोई डिफरेंस है, तो फिर उसके लिए वो हेल्पफुल हो जाएगा। Okay, like थोड़ी सी सही है, थोड़ा सा मिस्टेक है. Don't worry, मैं ये सही सर कह वो रहा हूँ. थोड़ा-थोड़ा पता है, कंप्लीटली Yes, listen. Yes. Suppose any interviewer asking this type of question, like why we use embeddings, why we use positional encoding, why we use tokenization. Clear? So suppose you given a input first, then you apply tokenization. Suppose word tokenization. Whole sentence convert into one word. Why we apply embeddings? Because that word convert in vector form. Which form? Vector form. Clear? Then we apply positional encoding. Positional encoding means it gives a temporary index. कुछ suppose आपका ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है, overview, you given as a input, then it here apply first tokenization, word tokenization. Suppose first word is transformer, second architecture, third overview. Then we apply embeddings, then it convert into vector form. Clear? Then apply positional encoding, then it provide temporary index. What? Temporary index like 1, 2, 3. This type of, that is called positional encoding. See, add information about the position of each token in the sequence as transformer inherently lack of sequential processing. Suppose you given a prompt, the cat sat on the mat. When you apply positional encoding, then the cat here provided 0, cat 1, sat 2, then on 3, the 4, mat 5. Like at a position of 0 and mat at the position of 5th. Get different positional vector adding to the embedding, to their embeddings. That is called positional encoding. It create temporary positional encoding. Clear? Okay, Vidhi? यस सर। Yes, let's embeddings. Transformer discrete input tokens into dense of vector. It create vector, allowing the model to process them mathematical. Why it is needed? Because neural network cannot understand text. I think everyone know. Like आप वो कोई सा भी न्यूरल नेटवर्क डायरेक्ट टेक्स्ट को नहीं अंडरस्टैंड कर पाता है. That's why we convert in vector form. That's why we apply here embeddings. They need numeric input. Like any machine not understand categorical or text form dataset. First you convert in vector form, then you apply positional encoding, then you apply something. Suppose you given a one prompt in your chat GPT.
First convert that prompt into tokenization, then apply embeddings, then apply position encoding, then apply multi-head attention, then apply adder normalization, then feed forward neural, then adder normalization, then that sentence create a सेंस मीनिंग, लाइक उसकी जिसकी कुछ मीनिंग निकले या फिर उस सेंटेंस से कुछ सेंस निकले। आफ्टर इतना प्रोसेस के बाद होता है, सोचिए। क्लियर? लाइक कोई भी मशीन हो न्यू टेक्स्ट और कैटेगोरिकल डेटा सेट पे वर्क ही नहीं कर सकती। फर्स्ट आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? वेक्टर के फॉर्म में। लाइक इन मशीन लर्निंग देयर यू अप्लाई वन हॉट इनकोडिंग, बट इन न्यूरल नेटवर्क हियर वी अप्लाई एम्बेडिंग्स, बिकॉज एम्बेडिंग्स create semantic meaning. What create? Semantic meaning. But in case of one hot encoding does not create semantic meaning. It create dummies column. That's why we apply embeddings. Okay class? If anyone asks what is the difference between embeddings and one hot encoding, then both are working same, both are converting vector form, but when you apply embeddings, embeddings give semantic meaning, but one hot encoding does not give semantic meaning. That's why we apply embeddings. Okay class, anyone any doubt regarding this embeddings and positional encoding? तो semantic meaning मतलब सपोज आपका नाम है विधि, क्लियर? आपने इन वहां पे वन हॉट इनकोडिंग कर दिया है। अब वो आपको किसी कोई लाइक ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू दे दे रहा है कि आपको उससे कुछ मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। सपोज आप क्लास की टॉपर है, 90% है। हाउ मच? 90%। वन मोर स्टूडेंट्स है जो कि 60% है। व्हेन यू अप्लाई वन हॉट इनकोडिंग डायरेक्टली आउटपुट क्रिएट टू कॉलम्स 1 and 1, दोनों की जगह पे 1 1 प्रिंट करेगा। क्लियर? बट एम्बेडिंग्स उसकी ओरिजिनल वैल्यू देगा कि लाइक इसका 0.9 है एंड जो आप उसका जो फेल और जो पास हुआ था 60 मार्क्स से उसका 0.6 है। इट मीन्स आपको एक सेमेंटिक मीनिंग मिल रहा है कि वो क्यों टॉपर है, क्योंकि उसके 90 मार्क्स है, वो या क्लास में सेकंड और थर्ड नंबर क्यों है, क्योंकि इसके 0.6 है। क्लियर? यस सर। सर लाइक मींस एक्यूरेट, बिल्कुल, जिससे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या फिर कंफ्यूजन यस, क्रिएट ना हो। सपोज वन हॉट एनकोडिंग लाइक इन योर एक कॉलम में, लाइक सपोज आपका एक कॉलम है नाम का, लाइक नेम का एक कॉलम है जहां पे आप लोग के 3 नाम लिखे हुए हैं। फर्स्ट में विधि, सेकंड में स्वास्तिक एंड थर्ड रो में क्या लिखा हुआ है? अभिषेक। फर्स्ट में विधि, सेकंड में स्वास्तिक एंड थर्ड में विधि। When you apply one hot encoding, first it create 3 columns. Like first column is Vidhi, second column is Swastik, third column is Abhishek. Like जिस भी रो में अभी लाइक लिखा होगा विधि का नाम, वहां पे क्या प्रोडक्ट कर देगा? डायरेक्टली 1। क्लियर? एंड जहां पे स्वास्तिक खरे लिखा होगा सपोज सेकंड रो में, वहां पे क्या प्रोडक्ट कर देगा? 1। एंड थर्ड रो में जहां पे लिखा होगा अभिषेक, वहां थर्ड कॉलम्स में वहां प्रोडक्ट क्या कर देगा? 1. It means it does not give semantic meaning. If student gets 60% or 90%, it gives always 1, 0 or 1. Clear? That's why we apply embeddings. Embeddings give some vector form like this type of, see, the for example vector for cat 0.1, 0.5, माने 0.5, 0.2, जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी हम यहां से उसको सिलेक्ट कर लेंगे, लाइक 0.3, 30%। क्लियर? यस सर। एनीवन एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? प्लीज क्लास। मनबीर? हाँ जी सर। यस, कोई डाउट है? सर ऑल क्लियर। नो सर। लाइक हम नो सर। सिंपल वर्ड में बता दूं तो व्हाट इनकोडिंग में क्या करता है कि सपोज अगर आपकी एक कॉलम में 3 रो हैं तो फर्स्ट वो 3 रो के 3 कॉलम क्रिएट करेगा, और जो कॉलम में जहां पे जो भी लाइक फर्स्ट कॉलम रहेगा उस कॉलम पे वहां पे 1 प्रोडक्ट कर देता है। क्लियर? और जो अदर रहेंगे वहां पे 0 प्रोडक्ट कर देता है फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में। तो वन हॉट इनकोडिंग आपको सिमेंटिक मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता है, बिकॉज इट गिव्स डायरेक्टली 1 और 0। क्लियर? बट इट गिव्स actual value. Each word is mapped to a vector using embeddings matrix, for example like this. Okay class? यस सर।
please, this type of question interviewer asks why we apply embeddings, because it gives semantic meaning. That's why we apply. Why apply positional encoding? Because it gives a temporary indexing, or it gives a temporary position for our data set. Third one is multi-head self-attention. Yes, I think I have already teach in previous class self-attention. Tell me. Yes, what is self-attention? Yes, tell me fast. सर LLM में यूज हो रहा था ना शायद. Okay. Yes, self. What is the disadvantage of encoder? Anyone tell me? Disadvantage of encoder. Why we use transformer architecture? Encoder and decoder भी तो सेम वर्क कर रहे थे. Why we use multi-head attention? सर एनकोडिंग की तो मतलब वो डिसएडवांटेज ये होता है कि सर उससे डेटा सेट फूल जाता है, उसके कॉलम्स बढ़ जाते हैं क्योंकि वो ट्रू फॉल्स की वजह से. Like Dorothy, I am asking, what is the disadvantage of encoder? सर एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट होती है. Okay. And सर ये इंफॉर्मेशन लूज कर देता लॉन्ग सीक्वेंस के लिए. yes, this is correct. And सर ट्रेनिंग एक्सपेंसिव होती है. wait 1 minute, please. और सर ये अकेले जनरेट भी नहीं कर पाता आउटपुट को. सर सेल्फ अटेंशन का मतलब ऐसा था ना कि एक वर्ड के लिए वो बाकी वर्ड्स भी शायद चेक करता था. Yes. स्वास्थ्य करे. Tell me disadvantage of सर हम ये ENN. चीज भी तो बोल सकते हैं. Why we introduce self-attention? Why we learn self-attention? This is the first question. Why we learn self-attention? सर यूनिक वर्ड्स को उठाने के लिए. या सर वो एक वर्ड के लिए मनवीर बोलना एक बार बोल. मनवीर. सर वो सेंटेंस में से मतलब जो यूनिक डाटा उसको उठाने के लिए. थोड़ी सी मिस्टेक है. यस, नेक्स्ट एनीवन. सर एक वर्ड के मीनिंग के लिए वो बाकी वर्ड का कंटेक्स्ट भी चेक करता है. एनीवन? स्वास्थ्य करे. सर रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स एंड सेम सेंटेंसेस के लिए होता है. थोड़ा सा एरर है. यस, स्वास्थ्य. रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स. लाइक बोलने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? बोलो ना, लाइक जो बोलना चाहते हो. किसमें रिलेशनशिप वर्ड में? विच टाइप ऑफ रिलेशन? See, self-attention. Suppose you given a one input in encoder. Tell, अभी मैं आपको disadvantage of encoder बता रहा हूँ. Clear? Suppose you given a this sentence. Clear? This sentence as a input. Okay, class? Please say yes or no. यस Yes, सर. sir. Yes, sir. Okay. सर But
Okay, then but I want only this line. Which line? This line. Clear? Which line? This line. But when you use encoder, तो encoder क्या करेगा कि यहाँ पे क्या करेगा कि फर्स्ट वन इनपुट लाइक दिस जाएगा, फर्स्ट लाइन दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस, इसके बाद लास्ट में आपको क्या लाइन मिलेगी? दिस. इट मीन्स यहाँ पे ट्रेनिंग टाइम ऑफ पीरियड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. आर्किटेक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी क्या बढ़ रही है? इंक्रीज हो रही है. क्लियर? दैट्स व्हाई वी यूज सेल्फ अटेंशन. सेल्फ अटेंशन क्या करेगा? सपोज यू अप्लाई सेल्फ अटेंशन, इट डज नॉट वर्क होल सेंटेंस, इट डायरेक्ट पिक अप दिस सेंटेंस एंड गिवन एज अ इनपुट. क्लियर? इसको पूरे सेंटेंस से मतलब ही नहीं है. लाइक जो आपको रिक्वायरमेंट होगी एज एन आउटपुट के लिए, उस इनपुट को वो यहां से सेंटेंस के पिकअप करेगा और एज एन इनपुट दे देगा. दैट इज कॉल्ड सेल्फ अटेंशन. क्लियर क्लास? यस सर. क्लियर? लाइक इसको नो नीड टू गिवन एज अ इनपुट लाइक होल सेंटेंस. क्लियर? पूरी जो आपका डिक्शनरी होगा, पूरे डिक्शनरी से जो उसको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रहेगी आउटपुट के लिए, उस इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली पिकअप करेगा एंड एज अ इनपुट चला जाएगा. दैट इज कॉल्ड सेल्फ अटेंशन. एंड हियर वी यूज मल्टी हेड अटेंशन. इट मींस हियर वी यूज मल्टीपल ऑफ सेल्फ अटेंशन. दैट इज कॉल्ड मल्टी हेड अटेंशन. सी looks at a different part of the input sentence in a parallel to understand the relationship. Why we need? Because help the model focus on multiple relevant word at a once time. That is called multi-head self-attention. Clear? It means it work only relevant data. Like suppose you create a flight price prediction model where you apply multi-head attention. And there you given a like 20 to 50 features as a input, but 20 to 50 फीचर्स जो रहेंगे उसको उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी. जो फ्लाइट प्राइस प्रोडक्ट्स के लिए जो पैरामीटर्स रहेंगे उस इंफॉर्मेशन को पिकअप करेगा, देन एज अ इनपुट सर्कुलेट कर देगा. अदरवाइज उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ड्रॉप कर देगा. दैट इज कॉल्ड मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन. वन अटेंशन हेड में फोकस ऑन अ cat subject, another may focus on a mat, another may look at the context around set. Then here we select only one. Then we apply add and normalization. Why we apply add and normalization? Because add a residual connection followed by layer normalization, adding in differ network training by preventing vanishing gradient. I think everyone know what is vanishing gradient problem. क्लियर? आपका जो एरर रहता है, सपोज कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो आपकी लॉस होगी, उस इंफॉर्मेशन को यहाँ से पिकअप करेगा, देन यहाँ पे ड्रॉप करेगा, और जो आप मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन से इंफॉर्मेशन आएगी वो दोनों को यहाँ पे ऐड करेगा, देन यहाँ पे नॉर्मलाइज करेगा. हेल्प प्रिजर्व ओरिजिनल इंफॉर्मेशन. सपोज मल्टी हेड अटेंशन तो कुछ इंफॉर्मेशन रहेगी जो यहाँ पे लॉस हो गई होगी, बट आप यहाँ पे ऐड एंड नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो उस इंफॉर्मेशन को ये ऐड कर देगा. देन वी अप्लाई हियर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क लाइक ANN. क्लियर? देन फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी, देन जो इसने कुछ मिस्टेक की होगी वो यहाँ पे दोनों नॉर्मलाइज हो जाएंगे. देन क्रिएट हियर कॉन्टेक्स्ट वेक्टर. विच टाइप ऑफ वेक्टर? कॉन्टेक्स्ट वेक्टर. सी apply the same two layer neural network to each token independently. Why we need? Because add more nonlinear transformer to help the model learn complex pattern. For example, say the attention output is cat 0.2, 0.5, 0.1. But feed forward neural network transformer like first layer is this, first layer this. The result is a new vector more defined for decision making. आपका जो रिजल्ट होगा लाइक यहाँ जो मिक्स होगा वो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी एज कंपेयर टू मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन. लाइक आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपको ये पता नहीं है कि ये आपका एक्यूरेट है कि गलत है. दैट्स व्हाई वी ऐड एंड नॉर्मलाइजेशन. क्लियर? इन योर चैट जीपीटी में सेम इसी टाइप से वर्क होता है. लाइक फर्स्ट आप इनपुट देते हैं, देन हियर अप्लाई टोकनाइजेशन, देन वी कन्वर्ट our data set into vector form, then we apply positional encoding,
Why? Because it gives temporary indexing. Then we apply multi-head attention. Suppose आपका जो यहाँ पे कुछ इनपुट कुछ आउटपुट आएगा, देन कुछ जो मल्टी सेल्फ अटेंशन यहाँ पे ड्रॉप की होगी इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे ये ऐड करेगा, देन जो मल्टी हेड अटेंशन से जो आउटपुट होगा दोनों को नॉर्मलाइज करेंगे। देन सेम थिंग यू अप्लाई फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, जो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आउटपुट होगा, देन ओरिजिनल आउटपुट को यहाँ पे नॉर्मलाइज करेगा, देन क्रिएट करेगा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर। क्लियर? एनीवन एनी डाउट रिगार्डिंग एनकोडर? यस क्लास? नो सर। नो सर। नो सर। क्लियर? कल आप एक बार इसको पढ़ के आना, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछना। क्लियर? नेक्स्ट सर क्लास एक हम बार पढ़ेंगे सर एक बार डिकोडर। सेल्फ अटेंशन बता दे जरा एक बार। सेल्फ अटेंशन इन सिंपल लैंग्वेज, सपोज यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है, क्लियर? यहाँ पे कुछ आपका नाम लिखा हुआ है, क्या नाम था आपका? साजिद सर, साजिद साजिद अली। आदित्य। यहाँ पे आपका आदित्य लिखा हुआ है, बट आप सपोज अगर सेल्फ अटेंशन अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको अपना आदित्य आउटपुट के लिए पूरा होल सेंटेंस एज ए इनपुट देना पड़ेगा, तो आपको ट्रेनिंग टाइम ऑफ पीरियड इंक्रीज हो जाएगा ना, आर्किटेक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? यस सर। सपोज आपको सिर्फ अपना नाम चाहिए, व्हेन यू अप्लाई सेल्फ अटेंशन ये डायरेक्ट उसको पिकअप करेगा, देन एज ए इनपुट दे देगा, तो ट्रेनिंग टाइम ऑफ पीरियड भी आपका कम हो जाएगा एंड आर्किटेक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी अप्लाई सेल्फ अटेंशन। यस सर, यस। ओके थैंक यू सर। Yes, anyone any doubt regarding encoder? Please, if anyone any doubt regarding encoder, please ask me right now. नो सर। Every interviewer asks embedding, positional encoding, multi-head attention, like architecture. Explain architecture. If you say first, sir, I'm taking input, then we apply tokenization. Then he asks how many types of tokenization. Then you ask, sir, word, sentence, like this type. Like then he asks which type of tokenization you apply. Like it depends on our input. Like suppose thousands of words or thousands of lack of words present in your input, then you apply direct sentence tokenization. Clear? It depends on your input. Then why you apply embeddings? Because when we apply embeddings, it convert our text into vector form that gives a semantic meaning. Then he says why you apply position encoding, then say it gives some temporary indexing for our data set. Like आपने जो आप एक कुछ इंडेक्सिंग दे देंगे, तो सपोज आपकी जगह पे एक सेंटेंस है दिस, अब यहाँ पे लुक्स की लाइक 8 का यहाँ पे कुछ अलग मीनिंग रहेगा, इंडेक्सिंग रहेगी। सपोज यहाँ पे कुछ 8 रहेगा, उसकी अलग इंडेक्सिंग रहेगी, वहां पे उसका अलग डिफरेंट मीनिंग होगा। दैट्स व्हाई वी गिव सम टेम्पररी इंडेक्सिंग। Clear? That is called positional encoding. Clear? Then yes, why we apply multi-head attention? Then you say like you take simple input as are like it depends on you, आपको किस टाइप का इनपुट लेना है एंड उसको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? ओके क्लास? यस सर। यस सर। थोड़ा आर्किटेक्चर थोड़ा टफ है, बट आप एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार रीड करेंगे, समझ में आ जाएगा। जो भी समझ में ना आए आप लोग कल एक बार लिख के लाना और मेरे से पूछ लेना, मैं एक बार फिर से बता दूंगा। क्लियर? ओके? कल आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डिकोडर। लाइक अभी मैं दोनों पढ़ा दूंगा तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। दैट्स व्हाई मैं अभी आपका टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि हियर मस्ट मल्टी हेड अटेंशन। व्हाट? मस्ट मल्टी हेड अटेंशन। ओनली इनकोडर ओनली एट multi head attention, but here you apply must multi head attention as well as multi head attention both. Clear? That's why we learn in decoder tomorrow. Clear? Okay class? यस सर। आप पीडीएफ को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे हम Yes, read कर I will सकें। share this PDF, this PPT today. Clear? Yes, tell me, anyone any doubt regarding encoder? Or please class, revise this architecture. Revise like draw multiple of times. Like if you are interested for data science, like this architecture every interviewer asks. Like explain transformer architecture. Suppose you written generative AI project, like AI text to fake news generator, social media, all these things. Then every interviewer asks,
एक्सप्लेन प्लीज ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। तो प्लीज क्लास एंड ऑल्सो ड्रॉ, आपसे ड्रॉ भी कराते हैं, तो प्लीज ड्रॉ मल्टीपल ऑफ टाइम्स। क्लियर क्लास? ओके यस सर, यस सर, ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके सर, थैंक यू सर। सर यहाँ पर कहीं पर NX जो था डायग्राम में वो एक्सप्लेन नहीं करा, वो मतलब ऐसे ही है या उसका भी कुछ रोल या मीनिंग है? किसका? NX करके जो लिखा था अब डायग्राम वो में। एनएक्स का वो लाइक वो है कि हम लोग डिफाइड कर रहे हैं, वो लाइक आपका ये क्या है, एनकोडर है डिकोडर, लाइक नेमिंग हम बता रहे हैं। ओके, क्लियर? और कुछ भी इसका फंक्शन नहीं है। ओके सर। ओके ओके ओके। यस विधि। प्रेजेंट सर। ओके वेट क्लास। ओके ओके, विधि प्रेजेंट। नेक्स्ट प्राप्ति। प्रेजेंट सर। ओके नेक्स्ट अंश। अंश सर एब्सेंट। क्लास लीव कर सकते हैं ना? यस 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 यस। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सक्सेना। यस सर। ओके अन्नत बंसल। यस सर। आदित्य हर्ष। यस सर। अखिलेश पटेल। यस सर। अखिलेश पटेल। देन हर्ष कुमार वर्मा। मृदुल वर्मा एब्सेंट। वैभव सिंह। अभिनव मिश्रा। शिव प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। ओके मोगा। यस सर। ओके अजय चौहान एब्सेंट। श्रेया एब्सेंट। अभिषेक तो हमेशा प्रेजेंट रहता है। हाँ सर। का भी प्रेजेंट है। प्रेजेंट सर। ओके उमान अली मोहम्मद एब्सेंट। नविका बंसल। नविका बंसल। प्रेजेंट सर। व्हाट अबाउट स्टडी नविका? थोड़ा बहुत रिवाइज कर रही हूँ सर। करेंगे व्हाट अबाउट तो बंद हो गई थी। लाइक के 14 ऑफ फेब?
अच्छता अच्छ Yes, Excuse me, Prashant. sir. Yes, Mehak. Sir, I was present, but I wasn't able to access my microphone at that moment. Okay, Mehak. What about like FSP? Sir, I have submitted all the documents. Okay, thank you, Mehak. सर आपने 36 की अटेंडेंस लगा दी है क्या? Yes, absent. सर Isika Makwana. प्रेजेंट सर। Okay. Jaya Jha. प्रेजेंट सर। I think today आपकी भी फर्स्ट क्लास है। नहीं सर, स्टार्टिंग में 2-3 डेज किया था अटेंड। फिर उसके बाद क्यों नहीं किया आपने? सर मैं बाहर चली गई थी तो नहीं हो पाया अटेंड। अब रहिएगा, ठीक है ना? यस सर। जया जया सब कुछ अपलोड कर दिया आपने? नहीं सर, अभी किया नहीं है, मैं अभी करूंगी, आपसे बात करने के बाद ओके करूंगी ओके मैं। ओके ओके। भार्गवी एब्सेंट, रक्षित एब्सेंट, खुशी एब्सेंट, समृद्धि एब्सेंट, प्रथम एब्सेंट, पारुल एब्सेंट, खुश एब्सेंट, कृतिका एब्सेंट, अंश एब्सेंट, आदित्य भारद्वाज एब्सेंट, सौम्या गुप्ता प्रेजेंट, यस सर। सुधांशु एब्सेंट, ओके ओके, मधुर सिंह प्रेजेंट, तन्मय पांडे प्रेजेंट सर। प्रेजेंट, मनवीर प्रेजेंट, नदीम प्रेजेंट, सरोज अहमद प्रेजेंट, जिया ओम प्रजापति प्रेजेंट सर। ओके ओके, जिया एब्सेंट, रिया साहू प्रेजेंट सर। ओके, रिया सर भार्गवी प्रेजेंट। ओके, प्रशांत प्रेजेंट सर। अवनिक शर्मा प्रेजेंट, अब्बू अवनिक कार शर्मा प्रेजेंट सर। प्रेजेंट, ओके, सर आप अनुग्रह मेरा नहीं प्रेजेंट, बोले, सर आप मेरा नहीं बोले हैं, शिवम रजक। यस 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 आई नो, I'm Arnav, sir. यस सर। लगा दी, अम्बू कार डन, डोंट वरी।
अनामिका पांडे प्रेजेंट। सर मेरा हो गया अटेंडेंस। प्रेजेंट सर। भार्गवी भार्गवी, हाँ सर। अनुग्रह गुप्ता सर प्रेजेंट। भार्गवी भार्गवी यस सर। क्या नाम है आपका? भार्गवी। यस सर। यस। व्हाट अबाउट एफएसपी? सर डन। ओके। सर अनुग्रह गुप्ता प्रेजेंट। यस यस यस, डोंट वरी। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। प्रेजेंट। यस। श्रेया? सर अनामिका पांडे also present. यस अनामिका, डोंट वरी। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। Good evening sir. सर श्रेय प्रेजेंट सर। ओके, अजय पाठक एब्सेंट। अब्बास मेहंदी सर मेरा हो गया है ना अटेंडेंस? सर अब्बास मेहदी प्रेजेंट। अर्पित पांडे प्रेजेंट। माधव प्लीज वेट कीजिए 1 मिनट। दीक्षा सर वर्मा अब्बास मेहदी की लगा दी। यस यस। अंकिता? भाई सर गुड इवनिंग। Present sir. ओके अंकिता। सर हिमांशु विश्वकर्मा की लगा दी। यस यस। निखिल तिवारी एब्सेंट। हेलो एक्सक्यूज मी सर। निखिल तिवारी, व्हाट अबाउट योर एफएसपी? सर साइट ओपन नहीं है सर, मैं कल अपलोड कर रहा था सर, वो अपलोड ही नहीं हो रहा है। प्लीज अपलोड राइट नाउ विद इन 5 मिनट्स।